Hello dear students. So today we are starting some numerical topics of average speed and average velocity. इन दोनों टॉपिक्स पर हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की सेटअप्स को आज स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जब मैं स्पीड के लिए बात कर रहा था तो हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज स्पीड which is equal to total distance या total covering distance upon total time taken, total time taken, ठीक है। और जब मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूं, इसके लिए एवरेज वेलोसिटी के लिए which is total displacement upon total time taken, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। अब इन टॉपिक्स के बेसिस पर आप कुछ एक न्यूमेरिकल्स को स्टडी करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट वी कंसीडर, एक क्वेश्चन है, an athlete runs in a circular path of radius 21 meter. An athlete runs in a circular path of radius 21 meter if he cover 2.5 round, if he cover 2.5 round in 2.5 round and complete this in, let me consider 5 minutes. कितने टाइम में कवर कर रहा है वो, उसको 5 मिनट में कवर कर रहा है। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये सेटअप दिया है मैंने। एक एथलीट है जो सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है, एक एथलीट है जो किस पाथ में रन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ है, ऑब्वियसली देयर इज अ radius. Let me consider this is a circular path, this is a center point and this is a radius of 21 meter, okay. If he cover 2.5 round, let me consider this is a starting point, and when he cover the first round, let me consider this is the first round, this is the second round. Now next is a half round, 2.5 round. So let me consider this is a one complete round, so half round. Let me consider this is A point, so this is the B point, so half round this A to B, so that is the last point. ये कौन सा पॉइंट होगा, इसका लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं कि एवरेज स्पीड के लिए, किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए, so average speed of the total distance upon total time, okay. Now considering about the total distance, okay, the one round, two round and a half round, 2.5 round, okay. So what is the value of one round, what is the value of one round? Let me consider, जब सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ में जो वन राउंड होता है वो सरकमफ्रेंस की इक्वल होता है, ओके। अब सरकमफ्रेंस की इक्वल है तो लेट मी कंसीडर आइडेंटिफाई दैट कि उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, दिस इज 2 पाई r, so 2 into 22/7 into what is the value of r, this is 21 मीटर। सो देखो ये थर्ड टाइम ये गया, सो
solve this. This is 44 into 3, 132. What is the value of one round? This is 132. And what is the value of 2.5 round? देखो 132 one round plus 132 two round plus half round और है, so 132 divided by 2. ओके, आप ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो और इजी गोइंग मेथड मैंने बताया हुआ है. दिस इज 2.5. ठीक है, so 2 2s are 4 and 1. This is 5 by 2. So 132 into 5 by 2. Solve this. This is 66 and 5. This is 330. So what is the value of total distance? 330 meter. कितना? 330 meter. Now what is the value of total time? Total time कितना है? देखिए complete time कितना लगा है? 5 minute. अब let me consider, आप आइडेंटिफाई करें टाइम. मोस्ट प्रोबेबली टाइम जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको सेकंड में ही आइडेंटिफाई करना है. ठीक है ना? सो 1 minute which is equal to 60 second. So 5 minute, so 5 into 60 which is 300 second. How many? 300 second. So calculate the average speed. So average speed, total distance कितना आया? 330 upon total time 300. So देखो solve this. This is 0 cancel, 3 से solve करते हैं. This is 11 upon 10. So यानी 1.1 meter per second. What is the value of average speed? This is 1.1 meter per second. Okay? अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी. ओके, चलिए अब एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या टर्म लेंगे? देखो एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, now calculate the displacement. Let me consider what is the condition of displacement. This is the shortest path. This is the shortest path between first point and last point. First point, this is A, this is the first point, and last point, this is B. So shortest path कौन सा हो सकता है? देखो A से B के लिए ऐसे जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, ऐसे जाएंगे तो इजी गोइंग पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. अब देखो जरा गौर से, अगर ये है ये, तो ये क्या हो गया? ये एक सर्कुलर पाथ के लिए डायमीटर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 21, दिस इज 42 मीटर. यानी जो डिस्प्लेसमेंट आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, वो कितना आ गया बेटा आपका? 42 मीटर. ओके, नाउ सॉल्व दिस. एवरेज वेलोसिटी, so average velocity is total displacement 42 upon time. What is the total time? Is 300. What is the 300? Solve this. 3 1 ja 3, 14, and this is 100. So 0.14 meter per second. Okay, so finally average speed जो आया आपका, एवरेज स्पीड जो आया वो आया 1.1 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी जो आया वो आया 0.14 मीटर पर. ओके, सो दैट इज द कंप्लीट वैल्यू. चलिए एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं इसी टाइप. ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में अवेलेबल है. आइडेंटिफाई दैट अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी. A body travels from A to B. Let me consider this is point A and this is point B, and here a body is available. So a body travels from A to B. जब A से B जा रही है बॉडी at 40 मीटर पर सेकेंड. जब A से B गई तो उसका स्पीड था 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ फ्रॉम B to A, वापस में वही बॉडी जब B से A की तरफ आती है, ओके, देन एट दैट टाइम द स्पीड इज
60 मीटर पर सेकंड। लेट बी कंसीडर, भाई पहले गई, ठीक है, उसको ट्रैफिक मिल गया, ठीक है ना, मान लो ट्रैफिक मिल गया तो उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, बाद में आई, मान लो नाइट में आई वही बॉडी, कहां से, बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच। चलो बी पॉइंट ए पॉइंट से कंफ्यूजन है, लेट मी कंसीडर, मैंने मान लिया कि आप यहाँ जयपुर में हो, ठीक है ना, और ये दिल्ली, आप ऐसे मान लो, ठीक है ना, तो आप जयपुर से दिल्ली गए, रूट चेंज नहीं है, रूट कैसा है, सेम है, ठीक है ना। तो जब आप जयपुर से दिल्ली गए तो आपकी स्पीड कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, मॉर्निंग में गए, हो सकता है ट्रैफिक मिला हो, ठीक है। अब जब दिल्ली से नाउ यू हैव टू केम जयपुर, सो आपका जो स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। अब बात आ रही है कि सर ना तो हमें डिस्टेंस अवेलेबल है और ना ही यहाँ टाइम अवेलेबल है हमारे पास में, दोनों में से कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करें। चलिए कुछ नहीं, लेट मानते हैं डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, मैंने कंसीडर कर लिया दिस इज x। अब जयपुर टू दिल्ली का डिस्टेंस x है, तो ऑब्वियसली दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि जो रूट है वो चेंज नहीं हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ है। सो अगर जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस x है तो दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा बेटा, x होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस तो मैंने कंसीडर कर लिया x। अब बात आती है कि टाइम की। अब एक बात बताओ, ये 40 मीटर पर सेकंड 40 की स्पीड से चल रहा है, ये 60 की स्पीड से चल रहा है, तो क्या दोनों का टाइम सेम हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई। एक तुम भाग के जाओ कहीं पर तो आप जल्दी पहुंचोगे, एक आप आराम आराम से चल के जाओ तो आपको टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है स्पीड अगर चेंज है, ठीक है ना, और डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियसली बात है किसमें वेरिएशन आएगा बेटा, टाइम में वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो लेट टाइम फॉर जयपुर टू दिल्ली मैंने कंसीडर कर लिया कितना, t1, मैंने कंसीडर कर लिया कि जयपुर से दिल्ली का टाइम कितना हुआ है, कितना लगा है जयपुर से दिल्ली में, t1 टाइम लगा है, ठीक है। एंड टाइम फॉर दिल्ली टू जयपुर दिस इज इक्वल टू t2, ये मैंने आइडेंटिफाई कर ली, ओके। अब मुझे कैलकुलेट करने हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए देखो ऐसी कोई सिंगुलर टर्म तो बने ताकि वो आपस में कुछ कटे पिटे या फिर कोई वैल्यूज मिले मेरे को, या तो ये x की टर्म में ले लिया मैंने, ये t की टर्म में ले लिया, तो कुछ सिस्टम ही नहीं बैठ रहा, बैठेगा अभी जरूर बैठेगा सिस्टम, देखते हैं क्या। देखो बेटा टाइम का एक फार्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए इससे t1 निकालते हैं हम लोग, t1 क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कितना माना है मैंने, x। अब t1 यानी जयपुर से दिल्ली का स्पीड कितना है, 40। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x अपॉन 40। सेम अगर t2 निकालो तो t2 के लिए डिस्टेंस सेम है, क्योंकि मैंने कहा ना रूट चेंज नहीं हुआ है, वापस दिल्ली टू जयपुर की डिस्टेंस भी कितनी है, x, और उसमें टाइम कितना है, उसका स्पीड कितना है बेटा, 60। अब देखो t1 और t2 की दोनों की वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इजी गोइंग वे में। चलिए तो एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, यहां से यहां कितना लगा x, और यहां से यहां कितना लगा x, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस x, कितना 2x। और टोटल टाइम t1 टाइम कितना था, x अपॉन 40, और ये x अपॉन 60, ओके। तो व्हाट इज द टोटल टाइम, दिस इज x by 40 प्लस x by 60, ठीक है। चलो चाहो तो आप इनको अलग अलग भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, चलो आप अलग ही कैलकुलेट कर लो, आपको इजी को रहेगा। दिस इज x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60, एलसीएम देखो आप लोग 120 एलसीएम आ जाएगा बेटा। तो देखो ये 3 बार कट हुआ, 3 to x, दिस इज 3x प्लस
ये 2 बार होगा, दिस इज 2x, सो दिस इज 5x अपॉन 120, ये कट होगा, सो दिस इज x अपॉन दिस इज 24। तो आप इसकी जगह डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, x अपॉन, ये तो हो गया आपका x और x क्या 2x, दिस इज x अपॉन 24। सो एवरेज स्पीड 2x अपॉन, देखो 2x के नीचे कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये टर्म बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखो बेटा, टर्म्स को कब ऊपर लेना है कब नीचे लेना है। देखो 2x सेपरेट है, 2x के नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे वाली टर्म के दो फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है ना, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर वाली टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म बना लो, 2x अपॉन 1 कर लो, होल अपॉन x अपॉन 24, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि किसको ऊपर लेना है किसको नीचे लेना है, तो अगर ऐसा कोई टर्म मिल जाए आपको, ठीक है, तो देखो ये 1 तो कहाँ आएगा नीचे, और ये 24 कहाँ जाएगा ऊपर, ये चीज ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज 2x इंटू 24 अपॉन 1 नीचे आएगा तो x इंटू 1, अब 1 तो ये 1 कंडीशन रहेगा, अब x से x कट गया, तो 24 इंटू 2 दिस इज 48। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आपका फर्स्ट आंसर क्या आया कि वो जो बॉडी है उसका जो एवरेज स्पीड रहेगा दिस इज 48 मीटर per second. Okay, now we have to calculate the wait, okay, now एवरेज वेलोसिटी, क्या अब हमको कैलकुलेट करना है इसका एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए देखो, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। अब देखो जरा गौर से, ये जयपुर से चला कहां, दिल्ली, और दिल्ली से वापस कहां आया, जयपुर, यही था। अब इसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, जयपुर, भाई यहां से चला और घूम फिर के वापस कहां आया, ये जयपुर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, अब यही फर्स्ट पॉइंट और यही लास्ट पॉइंट, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इसका मतलब सॉरी, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जब एक ही पॉइंट पर है, अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब यही 0 हो गया, जब यही टर्म 0 हो गई, तो 0 अपॉन टाइम तो हमारे पास में कुछ भी हो बेटा अवेलेबल, जब यही टर्म 0 हो गई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी दिस इज आल्सो बी 0। ओके, तो इस कंडीशन को आप लोग इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। ओके, तो अभी मेरे पास में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, जरा देखो बेटा क्या कह रहा है ये। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये कार है जो किसी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ओके, दैट वी कंसीडर दिस इज अ कार, थोड़ा अजीब कोई, ओके, चलिए, ये कोई कार है जो इस पाथ पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। क्या कह रहा है वो कि पहले हाफ टाइम में उसका जो स्पीड है वो कितना है बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर, एंड द सेकेंड हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले कि टाइम जो है, टोटल टाइम मैंने कितना कंसीडर कर लिया बेटा, मान लो t, तो फर्स्ट हाफ टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है t/2, ठीक है ना। तो t/2, फर्स्ट वाले t/2 में लेट मी कंसीडर कि मैंने कंसीडर कर लिया यहां से, ये फर्स्ट हाफ टाइम के लिए, यानी t/2 के लिए जो स्पीड रहा वो कितना रहा बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। और यहां से आगे ये मान लो आपका सेकेंड हाफ हो गया, तो यहां पर भी टाइम कितना है, t/2, बट यहां जो स्पीड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, स्पीड कितना हो गया बेटा,
दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये दोनों फॉर्मेशन मैंने देख लिया। प्रॉब्लम क्या है अब यहाँ पर देखो, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहां पर हमको डिस्टेंस की कंडीशन मालूम थी, ठीक है, बट टाइम की नहीं थी। यहाँ हमको टाइम की कंडीशंस मालूम है बट डिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट हाफ के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस। आपने मैंने कंसीडर कर लिया x1, और सेकेंड हाफ में डिस्टेंस दिस इज x2। ये दोनों पॉइंट मैंने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा, मैं ऊपर वाला रफ करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, फर्स्ट हाफ कंडीशन के लिए, फर्स्ट हाफ कंडीशन के लिए देखो मैंने बताया कि किसी ना किसी टर्म को एक सिंगल वेव में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ x1 x2 आ गए तो इनको कन्वर्ट कर लो। देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ है x1, स्पीड x1 में स्पीड कितनी है 50 इनटू टाइम आपका t/2, ये 25 है तो दिस इज 25 t। x1 कितना आ गया बेटा 25 t। अब सेकेंड हाफ में x2, अब यहां स्पीड कितना है 60 इनटू टाइम वही है t/2, दिस इज 30। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, दिस इज 30 t। बस हो गया काम अपना। हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना था t/2 प्लस t/2, यानी टोटल टाइम कितना था t मान लेते हैं, टोटल टाइम t हो गया t/2 प्लस t/2, यानी कितना हो गया t। अब x1 प्लस x2, x1 कितना है आपका 25t प्लस x2, दिस इज 30t अपॉन t। सो ये देखो ये कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गया 55t अपॉन t, ये कैंसिल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, दिस इज 55। अब यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं आएगी बिल्कुल, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू किसमें चली थी किलोमीटर पर आवर में। सो हियर आल्सो दिस इज किलोमीटर पर आवर। ओके, so what is the value of average speed, this is 55 kilometer per hour। okay, now the value of average velocity। average velocity, अब देखो एक बात बताओ, ये गाड़ी यहां से चली और यहां कहीं पहुंची, क्या ये यहां से कहीं वापस आई, बिल्कुल भी नहीं आई। तो इसका मतलब ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया और यही इसका लास्ट पॉइंट हो गया। अब जब ये फर्स्ट पॉइंट है और यही लास्ट पॉइंट है तो यही कंडीशन तो डिस्टेंस के लिए भी थी और यही कंडीशन किसके लिए थी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी थी। तो ऑब्वियसली बात है जब दोनों में कोई चेंज ही नहीं है तो जितनी वैल्यू एवरेज स्पीड की रहेगी उतनी ही वैल्यू किसकी रहेगी बेटा एवरेज वेलोसिटी की। तो दिस इज आल्सो 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इन कुछ कंडीशंस के बेसिस पर आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।